اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجیے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجیے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے ہے، اللہ جمعیت علماء ہند کو بہتر بدلہ نصیب کرے۔ جی ہاں، یہ جو یوگی آدتیہ ناتھ کے اور بی جے پی شاشت اسٹیٹس میں جو بلڈوزر آتنکواد کا ننگا ناچ کر رہے تھے اور صرف مسلمانوں کے گھروں کو، ان کی دکانوں اور مکانوں کو ٹارگٹ کر رہے تھے، جمعیت علماء ہند کو اللہ بہتر بدلہ دے۔ جمعیت علماء ہند نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا اور اب خبر آ رہی جسے میں اچھی خبر کہوں گا کہ بلڈوزر ایکشن پر سپریم کورٹ بھی غصہ ہو گئی، اور سپریم کورٹ نے کہا کہ ملزم ہی نہیں، ابھی جس پر الزام ہے ملزم ہی نہیں، مجرم کا گھر بھی نہیں گرایا جا سکتا۔ اور یہاں تو بی جے پی کے آتنکوادی بلڈوزر کیا کر رہے ہیں کہ بس پتھر اس گھر سے آیا تھا، ختم، نہ کوئی سنوائی، نہ کوئی مقدمہ، نہ کوئی پولیس اسٹیشن، نہ کوئی کورٹ، کچھ نہیں، بس بلڈوزر پہنچ جاتا تھا اور مسلمانوں کے بنگلوں کو گراتا تھا، گھروں کو، دکانوں کو، مکانوں کو گراتا تھا۔ جمعیت علماء ہند نے اس کے خلاف سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ سپریم کورٹ نے صاف طور سے کہا کہ ملزم ہی نہیں، مجرم کا گھر بھی نہیں گرایا جا سکتا۔ سپریم کورٹ نے تمام اسٹیٹس کے لیے، ریاستوں کے لیے گائیڈ لائنز جاری کرنے کے لیے تیار ہو گئی، 13 ستمبر تک فریقین سے رائے مانگی ہے۔ جمعیت علماء ہند اور جماعت اسلامی نے بھی سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اب جمعیت علماء ہند اور جماعت اسلامی کی درخواستوں پر، عرضیوں پر اگلی سنوائی 17 ستمبر کو ہوگی۔ مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ گائیڈ لائن کا فیصلہ خوش آئند ہے، انشاءاللہ حتمی فیصلہ، فائنل ججمنٹ بھی مظلومین کے حق میں ہوگا۔ وہیں پر مولانا محمود مدنی نے کہا کہ بلڈوزر سے انصاف نہیں بلکہ انصاف کا قتل ہوتا ہے۔ ندیم خان نے کہا کہ 8-10 برسوں میں پہلی بار 2 بلڈوزر ناانصافی کے شکار سپریم کورٹ گئے ہیں۔ ایکچوئل میں ہمارا مسئلہ ہی یہی ہے کہ ہم لوگ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ یا نیشنل کورٹ کہیں پر بھی جاتے نہیں ہیں، ہمیں جمہوری طریقے سے باقاعدہ ظلم کے خلاف اور ظالموں کے خلاف، اتیاچار اور ناانصافی کے خلاف جانا چاہیے۔ ناظرین، ایک مہاراشٹر کا ایک لیڈر ہے 1.5 فٹیا، جو کتوں سے بھی زیادہ آج کل بھونکنے کا کام کر رہا ہے، کتوں کو بھی پیچھے چھوڑ رہا ہے۔ بی جے پی نے اور یا پھر سرکار نے اس کے گلے میں پٹا ڈالنا چاہیے۔ اس 1.5 فٹیا نے، نتیش رانے نے کہا کہ مسجدوں میں آ کر چن چن کر ماریں گے۔ نتیش رانے نے گستاخ، ملعون اور شیطان مردود گری راج رام گری کی سپورٹ میں ایک مورچہ نکالا۔ خیر، مقدمہ اس پر درج کر لیا گیا ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ اب جگہ جگہ نتیش رانے کے خلاف بھی آندولن ہو رہے ہیں، اور اس کتے پر بھی باقاعدہ
भौंकने की वजह से कि ये कुत्तों से भी ज़्यादा भौंक रहा है और नफरतें पैदा कर रहा है, तो अब लोग इस पर भी मुकदमा दर्ज करने की मांग कर रहे हैं, गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हुकूमत इसको गिरफ्तार नहीं करेगी, क्योंकि हुकूमत ऐसे पालतू कुत्तों के ज़रिए से ही नफरत फैलाने का काम कर रही है। खैर, नीतीश राणे के खिलाफ ज़बरदस्त अंदाज में कांग्रेस के नेताओं ने आवाज़ उठाई और अलग अलग मुस्लिम लीडरों ने भी आवाज़ उठाई। रुकने असम्बली असलम शेख ने भी आवाज़ उठाई, अमीन पटेल जो कांग्रेस के नेता है उन्होंने भी आवाज़ उठाई और मुंबई पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करते हुए उन्हें नीतीश राणे के भौंकने पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। नीतीश राणे, मैं मुसलमानों को ये भी बता दूं कि अब हमारा काम सिर्फ इतना ही रह गया है कि हर 8 दिन में एक नया कुत्ता आएगा, भौंकेगा और हम उसके खिलाफ आंदोलन करेंगे, रैलियां निकालेंगे। बस हमारा काम शायद यही रह गया है और हुकूमत चाहती है कि ऐसे कुत्ते भौंकते रहे और हम लोग रैलियां निकालते रहे, आंदोलन करते रहे, फसाद होते रहे। लेकिन मैं मुबारकबाद दूंगा कांग्रेस के नेताओं को भी। विजय वडेट्टीवार जो अपोजिशन लीडर है, इन्होंने नीतीश राणे के बयान पर बीजेपी हुकूमत पर तनकीद की है, शिंदे सरकार पर तनकीद की है और कहा है कि ये फसादी कौन है। नीतीश राणे के ताल्लुक से कहा कि ये फसादी कौन है, वजीर दाखिला इस पर खामोश क्यों है? क्योंकि जब वो खुलकर ये कह रहा है कि मुसलमानों को मस्जिदों में घुस घुस कर मारेंगे, तो इस कुत्ते को फौरन गिरफ्तार हो जाना चाहिए। नाज़रीन, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि हमने एक मस्जिद खो दी है, मजीद नहीं खोना चाहते हैं। वक्फ तरमीमी बिल जो एक नापाक बिल है, जिससे मोदी और बीजेपी मुसलमानों की दरगाहों, खानकाहों, मस्जिदों और औकाफ की ज़मीनों को हड़पना चाहती है, इसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार को निशाना बनाया और कहा कि हम जल्द ही इस नापाक बिल के खिलाफ मुल्क गीर पैमाने पर तहरीक मुहिम चलाने का ऐलान करेंगे। उन्होंने कहा कि हमने एक मस्जिद खो दी है और अब हम मस्जिदों, खानकाहों, दरगाहों और यतीम खानों को खोना नहीं चाहते हैं, इसलिए हम जल्द ही वक्फ को बचाने के लिए मुल्क गीर पैमाने पर तहरीक का ऐलान करेंगे। और असदुद्दीन ओवैसी ने यह भी कहा कि यह मसला सिर्फ वक्फ का मसला, ये जो है ये देवबंदी, बरेलवी और अहले हदीस का नहीं बल्कि पूरे मुसलमानों का मसला है। और उन्होंने कहा कि मैं मोदी से पूछना चाहता हूं कि अगर वक्फ बन जाता है तो किस कानून के तहत मेरी जायदाद की हिफाजत की जाएगी। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। जी हाँ, आखिर एक मुस्लिम कद आवर नेता और रहनुमा रहबर अमानतुल्लाह खान को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर हमला किया और कहा कि आमिरियत, हिटलर शाही, तानाशाही और गुंडागर्दी से बीजेपी काम ले रही है। वहीं पर अमानतुल्लाह खान ने कहा है कि ईडी और सीबीआई का नापाक इस्तेमाल पार्टी को तोड़ने और अपोजिशन लीडरों को दबाने और कुचलने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। नाज़रीन, मणिपुर से फिर बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है कि मणिपुर में फिर हिंसा फूट पड़ी, तशद्दुद फूट पड़ा। 2 लोगों के हलाक होने की, मरने की खबरें आ रही है। वजीर आला के दामाद ने अमित शाह को खत लिखा और कहा कि आपकी जो केंद्र सरकार की जो फोर्स है, मरकजी फोर्स है, आप इसको वापस बुला लीजिए। मणिपुर तकरीबन 1.5 साल से जल रहा है। महिलाओं को, औरतों को, बच्चियों को वहाँ पर नंगा करके घुमाया जा रहा है और आम इंसानों का मर्डर, कत्ल किया जा रहा है। तोड़ फोड़, हिंसा, तशद्दुद जारी है। मगर इस मणिपुर में आज तक वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जाने की हिम्मत नहीं हुई है। नरेंद्र मोदी दुनिया के 10 मुल्कों का इन 1.5 सालों में सफ़र करके आ गए हैं, घूम घाम के आ गए, मगर अपने ही मुल्क के मणिपुर में जाने को तैयार नहीं है और मणिपुर में हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। आखिर 2 लोग गुज़िश्ता कल भी मारे गए हैं, जिस पर मणिपुर के वजीर आला मुख्यमंत्री के दामाद ने अमित शाह को खत लिख कर यह कहा कि मरकजी फोर्स को वापस बुला लीजिए। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश के देवबंद से बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है कि देवबंद इलाके की एक मुस्लिम बेटी फिरदौस ने मुर्तद होकर, यानी अपना दीन, अपना ईमान और इस्लाम को छोड़कर विशाल नामी एक हिंदू से शादी की और ये शादी बजरंग दल की निगरानी में हुई। यानी आप समझ लीजिए कि भगवा आतंकवाद कितने जोरों पर है, भगवा लव जिहाद कितने जोरों पर है। मगर इस खबर पर हमारे यहाँ का रखेल गोदी मीडिया नहीं भूकेगा, क्योंकि यहाँ फिरदौस
विशाल की जिंदगी में आई है। हाँ, अगर कोई हिंदू लड़की मुसलमान अगर कोई उसको लेकर आकर शादी करता तो फिर हमारे यहाँ का रखेल मीडिया, गोदी मीडिया कुत्तों का भी रिकॉर्ड तोड़ देता भौंकने में। मगर यहाँ बजरंग दल की निगरानी में लड़की ने हिंदू धर्म इख्तियार किया और हिंदू रस्मों रिवाज के मुताबिक उसकी मंदिर में शादी की गई। यही नहीं, बजरंग दल के कारकुनों की निगरानी में उसने अपने आशिक से मंदिर में हिंदू रस्मात के मुताबिक शादी भी की। मगर हमारे यहाँ का अब पूरा के पूरा मीडिया इस पर खामोश है। लेकिन खैर, मैं गैरों से क्या शिकायत करूं, मुझे अपनों से शिकायत है कि हमारे अपने मुसलमान अपनी बच्चियों की देख रेख और अपने बच्चों की सही दीनी इस्लामी तरबियत, ईमानी तरबियत नहीं कर पा रहे। इसलिए आज से 5 दिन पहले जो मेरा बयान हुआ था जलगांव के एरंडोल में, मैंने वहां पर भी ये जुमला कहा था कि मुसलमानों, हजारों की तादाद में औरतें भी वहां मेरे बयान में थी। मैंने कहा था कि मुसलमानों, अपने बच्चों की दीनी इस्लामी ईमानी तरबियत का बेहतरीन इंतजाम करो, वरना दुनिया भी तबाह होगी और ऐसे ही आखिरत भी तबाह होगी। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है कर्नाटक से। जी हाँ, कर्नाटक में आप जानते हैं कि बीजेपी हुकूमत जब आई थी तो बीजेपी हुकूमत ने बड़ी शरारतें की। हिंदू मुसलमानों में नफरतें पैदा करने के लिए जो अपना शैतानी एजेंडा है बीजेपी ने पूरा वहां पर लागू किया था। हिजाब के खिलाफ, नकाब के खिलाफ, अकलियत माइनॉरिटी की स्कॉलरशिप के खिलाफ। लेकिन अब बड़ी खुशी की खबर आ रही, क्योंकि कर्नाटक में बीजेपी को हटाकर सेकुलर हुकूमत, कांग्रेस हुकूमत आई है। इसलिए अच्छी खबर आ रही है कि कर्नाटक में जो बीजेपी ने माइनॉरिटी की स्कॉलरशिप स्कीम को खत्म कर दिया था, अब वो स्कीम को बहाल कर दिया गया है। हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटक की सदारमिया हुकूमत ने माइनॉरिटी स्टूडेंट की स्कॉलरशिप स्कीम को बहाल कर दिया है, जिसे बीजेपी ने खत्म कर दिया था। वजीर BZ जमीर अहमद खान ने इतवार को असेंबली में कहा कि बीजेपी ने 2023 में माइनॉरिटी स्टूडेंट के लिए स्कॉलरशिप स्कीम को रोक दिया था, हमने उसे बहाल कर दिया है। अब हम तकरीबन 1300 मेडिकल स्टूडेंट्स को 5 लाख रुपए की स्कॉलरशिप फराहम कर रहे हैं। और कांग्रेस हुकूमत ने माइनॉरिटी स्टूडेंट के लिए स्कॉलरशिप में 80 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठिया हुआ है? इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो या मस्से वाली हो, और अगर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर खुश नहीं है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, महाराष्ट्र की 2 बड़ी खबरें आ रही है। एक तो पूना से हमारे रिपोर्टर हाफिज शुआइब और अजहर बाबा कादरी ने बताया कि NCP के एक्स काउंसिलर, साबिक कारपोरेटर विनराज उंडेकर का कत्ल कर दिया गया है, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। तेज धार असलहों से उस पर हमला किया गया। नानापेट इलाके में हमला किया गया और गोली मारकर फरार हो गए तमाम के तमाम कातिल। महाराष्ट्र में असेंबली इलेक्शन को लेकर इस वक्त महाराष्ट्र का सियासी माहौल गर्म है और पूना में एक बड़ा कत्ल हुआ है। वहीं पर दूसरी खबर महाराष्ट्र के नांदेड़ से आ रही है कि नांदेड़ में एक नौजवान शेख यूनुस का अपने ही घर में कत्ल हो गया है। लाश जो है वो हॉल में मिली है। पूरे इलाके में दहशत का, डर का और खौफ का माहौल है। बताया जा रहा है कि नांदेड़ के वागी रोड इलाके के सैलाब नगर में महमूद फंक्शन हॉल के बाजू में शेख यूनुस शेख पासा, उम्र 45 साल, जिनका घर है, उनकी लाश सुबह 9 बजे सबसे पहले उनके बेटे ने देखी। जैसे ही वाकई की इत्तला मिली, जिले पुलिस सुपरिटेंडेंट कुमार, एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सूरज गौरव और डिपार्टमेंट को खबर दी गई। शेख यूनुस के घर में घुसकर कातिल ने जो कत्ल किया है वो यकीनन एक चैलेंज है, जिसकी वजह से पूरे इलाके में दहशत फैल गई है। शेख यूनुस का कत्ल आखिर क्यों किया गया, अभी तक इस बात का पता नहीं चल सका है। खबर बोलने तक वजीर पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज करवाने की कार्रवाई की जा रही थी। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश से फिर बड़ी खबर आ रही है। मथुरा की शाही ईदगाह, मथुरा की शाही ईदगाह को बम से उड़ाने की धमकी आई है। धमकी देने वाले पुष्पेंद्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और मुलजिम का दावा आज नहीं, उसने दावा भी किया है कि आज नहीं तो मस्जिद को कल जरूर गिराया जाएगा। खैर, पुलिस ने इस मुलजिम को, पुष्पेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है और उसे सनकी यानी साइकिक पेशेंट बताया है।
मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा, हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। हर्बल सेहत लाए हैं 100% देसी जड़ी बूटियों से इलाज। मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, गुर्दे की पथरी, खुजली, बवासीर, खूनी मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, अभी कांटेक्ट।